अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज मुशीराबाद में खवातीन के प्रोग्राम में अपनी तकरीर का आगाज तेलुगु में करते हुए सबको हैरत ज़दा कर दिया। इस तकरीर में बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण भी मौजूद थे। మహిళలు తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడాలి, భర్తల ఆధార్ మీద కాకుండా స్వతహాగా రాణించాలి అనే ఒక సంకల్పంతో మహిళా పక్షపాతిగా మొదటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు స్వాతంత్ర అనంతరం మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా అనేకమైన కార్యక్రమాలు వారు యోజన చేసి మొట్టమొదటిగా మొత్తం సభ్య సమాజం కూడా సిగ్గుతో తలవంచుకునే రీతిలో అనేక ప్రభుత్వాలు పాలకులు ఈ దేశాన్ని పాలించాయి. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కానీ పట్టణ ప్రాంతాల్లో కానీ పేద వర్గాలు ఎవరైతే మార్జినలైజ్ సెక్షన్స్ ఉంటున్నాయో ఆ ప్రాంతాల్లో తమ కాల కృత్యాలు తీర్చుకునేదానికి దైర్భూమి వాడుకునే దుస్థితి సాంప్రదాయం ఈ దేశంలో కొనసాగుతుంది. మన ఆడపడుచులు అక్కా చెల్లెలు చెంబు పట్టుకుని వెళ్ళే ఈ సంస్కృతికి అందరికీ నమస్కారం. నేను ఈ ప్రోగ్రాంలో అటెండ్ అయినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. నేను ఇప్పుడు మహిళా ప్రోగ్రాంలో భాగ్యశ్రమం ఆగడం చాలా ఇష్టపడుతున్నాను. ఇక్కడి వచ్చిన మహిళలు అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. I will another 1 or 2 months I will fully talk in Telugu. Good morning everybody. I appreciate the efforts of our Telangana State Unit BJP Chief Dr. K. Lakshman, and I always admired him. I appreciate his efforts not only in the political field but also in the social field to empower the womanhood. So I really appreciate your work, and definitely this will be a moral boost to the womanhood of Telangana. And I my respects to Srimati Ramadevi, director, and she was telling she is training so many women entrepreneurs, and she was telling me our President Lakshman came to her center and he stayed for a longer time to select what all the schemes will be helpful for the women. So I really appreciate your cooperation for this movement, and I appreciate the participation of Telangana KVIC unit Sri Chandilal, and I appreciate the participation of NYKS Director Pramod Singh, and I appreciate the participation of Sri Praveen Kumar and all the dignitaries on the dais, off the dais, and apart from that, as I said, ikkadi vachina mahila andariki na shubhakankshalu. And women and men friends also, because we should not lift up. My respects to you and all my media friends, my respects, and all my security officers. First of all, I apologize, I could not come in the correct time, because today after completing 2 or 3 programs, I have to attend this program, because our respectful and our Iron Man's Patelji's birthday today, so we had a program at Raj Bhavan, and 3 of our very dedicated workers got retired today, and our Honorable His Excellency Kerala Governor visited Raj Bhavan. So I have to spare my time for these programs. So हमारे मुल्क में अरसे दराज से ये बात साबित होती आ रही है कि नौकरियों में नौकरी सरकारी नौकरी ये बड़ी शानदार होती है, क्योंकि सरकारी नौकर आने जाने की तनख्वाहें लेता है और काम करने के इसे आवाम से पैसे लेने पड़ते हैं।
तभी तो लोग बड़े पापड़ बेलकर सरकारी नौकरी हासिल करने में कामयाब होते हैं। और साहब, इसे हासिल कर लेने वाले की गलत कारकर्दगी पर इसे कोई सज़ा देना सरकारी नौकरी हासिल करने से भी बड़ा मसला है। कोई उसका बाल भी बेकार नहीं कर सकता, क्योंकि सब एक दूसरे के राजदार बन जाते हैं। वैसे अभी खबर है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल कर लेने वाले एक बदनाम ज़माना शख्स एम.ए. हमीद के खिलाफ में सैकड़ों शिकायतें मौसूल हुई हैं। बतलाया गया है कि इनके तकर्रुर के बाद ये हर जगह तनाज़ात का शिकार बनता रहा, लेकिन इसको निकाला नहीं गया, बल्कि सिर्फ ट्रांसफ़र पर इक्तफा करनी पड़ी। ये ज़िले अनंतपुर में रहा, वहाँ के कलेक्टर ने इसे मेमो दिया। 2010 में ज़िले करीमनगर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इसकी गलत कारकर्दगी पर उसे मेमो जारी किया। फिर बीच में कई तनाज़ात चलते ही रहे और अब 2017 में ज़िला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डी रोनाल्ड रोस ने भी इसकी कई शिकायत पर उसे लथाड़ा, लेकिन वह रहे सरकारी नौकरी। अभी खबर है कि इसे तरक्की मिल गई है, लिहाजा अभी एक 3 रुकनी मेंबर्स की कमेटी, जिसमें शामिल है तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के बी शफीउल्लाह, हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शकूर और TSMFC के MD वी विक्टर ने एम.ए. हमीद के तनाज़ात की एक तफसीली जांच रिपोर्ट भी हुकूमत को पेश की, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपनी तरक्की का जायजा आखिरकार हासिल कर ही लेने की खबर मिली है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन से मीडिया ने जब इस सिलसिले में बातचीत की तो उन्होंने बतलाया कि सब मामला तय कर लिए गए हैं, लेकिन क्या मामला तय कर लिए गए हैं, इस पर अभी सवालिया निशान आ गया है। हमीद साहब को बीते प्रमोशन पूरे हमारे बोर्ड के जरिए से दिया गया है। हमीद साहब को दिया गया है, अहमद अली साहब को दिया गया। तारीख गवाह है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में कई सालों से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में ऑफिस में काम करने वालों को कई प्रमोशन नहीं थे। हम लोग बोर्ड में बैठ के जो हकदार है, जो एलिजिबल है, जिसका सीनियरिटी के हिसाब से हम लोग हर एम्प्लॉय को जिसको प्रमोशन मिलना था वो बोर्ड के जरिए से दिया गया। मेरा ही डिसीजन है, तो पूरे यहाँ पर हमारे MD, हमारे ऑफिसर उनको मिलकर सीनियरिटी के हिसाब से तो प्रमोशन मिला। ये सब एक ऑफिसर के ऊपर जो इल्ज़ाम है, गवर्नमेंट के पैसे भी ड्यू है और 3-4 स्टेट से IAS ऑफिसर उनको जो है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए हुए है। तो उसके बावजूद भी एक ऐसे ऑफिसर को जो गवर्नमेंट के पैसे ले लेता है तो उसको लाके आप मैनेजर पोस्ट पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बिठाते हैं, तो क्या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नुकसान नहीं होगा? आप और घूस का जब चेयरमैन यानी से पहले उनको तो कुछ कंप्लेंट खाऊंगा क्या था, उसका क्लैरिटी है बड़ी कम। इस तरह जहाँ पर उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम था और उन्होंने क्लैरिटी कर लिया। क्लैरिटी करे बाद ही हम लोग इनको डिस्ट्रिक्ट बेस से DMW से यहाँ पर हेड ऑफिस में ला गए, जिस तरह दूसरे ऑफिस में से, क्योंकि इनका लॉयल्टी और क्लैरिटी को से भी ऑफिस करेंगे, देखिए ऑफिसर से हम काम लगाएंगे इंशाल्लाह पूरा बहुत स्कीम की सर्टिफिकेट एलिजिबल करके उस पर टीम डाल के उसके ऊपर कमेटी डाल के ही उसके ऊपर उसका प्रमोशन देते हैं। किसी के जातियात से हम आपको खिलाने का नहीं, आपको कोई भी चीज़ नहीं, जो एलिजिबल होंगे, जिसकी सीनियरिटी होंगी, जिसकी काबिलियत के ऊपर वो कमेटी रिपोर्ट के बाद में इंशाल्लाह उसको हम प्रमोशन देंगे। हज साल 2020 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में जो 10 नवंबर को मुकर्रर की गई थी, ज़राए के मुताबिक तोसी हो सकती है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने 10 अक्टूबर को हज हाउस नामपल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब में ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने के अमल का इफ्तिताह किया था। हज हाउस में आज़मीन की रहनुमाई और मदद के लिए खुसूसी हेल्प डेस्क भी कायम किए गए हैं, जिससे हर दिन सैकड़ों आज़मीन हज इस्तेफादा कर रहे हैं। सदर-ए-नशीन हज कमेटी मसीहुल्लाह खां हेल्प डेस्क की रास्त निगरानी कर रहे हैं। दरखास्त गुजार अपने घर से भी रास्त दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उसकी हार्ड कापी हज कमेटी में दाखिल करनी होगी। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं,
लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। हिंदुस्तान की पहली और वाहिद खातून वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी 35वीं बरसी के मौके पर जबरदस्त खिराज अक़ीदत अदा किया गया। ग्रेटर वरंगल सिटी कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुनक़दा जलसे में उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एन श्रीनु, सेक्रेटरीज ई.वी. श्रीनिवास, बी श्रीनिवास, सदस्य शोबे अखिलियत वरंगल अयूब, डिवीजन सुदूर समद और जफर ने शिरकत की। వారి యొక్క పటానికి పూలమాలలేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలలో మొదటి ప్రధానిగా చేసిన మహిళ ఎవరయ్యా అని చెప్పుకుంటే ఇందిరాగాంధీ। ఈరోజు ప్రపంచం గర్వించేలాగా భారతదేశాన్ని ముంగటికి తీసుకుపోయి ఉక్కు మనిషి అనిపించుకున్న ఘనత ఇందిరాగాంధీ। ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ త్యాగాలకు మరో పేరు ఇందిరాగాంధీ కానీ, రాహుల్ గాంధీ కానీ, ఈరోజు గాంధీ కానీ, గాంధీ కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ దేశం కోసం ప్రాణ త్యాగాలు చేసిన కుటుంబం కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఈరోజు మేమంతా కూడా కాంగ్రెస్లో ఉన్నాము, తల వంచి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్నామంటే ఇందిరాగాంధీ లాంటి చూపెట్టిన బాటలోనే ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ కార్యకర్త కూడా నడవాలి। ఈరోజు దేశ పరిస్థితులు ఈరోజు దిగజారుతున్నారు, ఈ మతోతత్వ పార్టీలను ఎదుర్కోవాలి అంటే ఇందిరాగాంధీ గారు చూపెట్టిన బాటలోనే ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త నడవాలి। ఈరోజు దేశంలో ఈ మతతత్వ పార్టీలు, ఈరోజు ఎలాంటి దిక్కు దిశం లేని పార్టీలు ఈ దేశంలో కానీ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ రాజ్యం వెళ్తున్న తరుణంలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులంతా ఒకటి కావాలి। ఇందిరాగాంధీ గారు చూపెట్టిన బాటలో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ను జెండా రెపరెపలు ఆడించాలి అంటే అది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే, కాంగ్రెస్ త్యాగశీలుల బాట మీద అందరం కూడా నడిచి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఆసన్నమైందని చెప్పి ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకు గుర్తు చేసుకుంటూ ఈరోజు ఇందిరాగాంధీ గారిని ఏదైతే వారు చూపెట్టిన మార్గంలో ప్రతి కార్యకర్త నడవాలని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియపరచుకుంటున్నాను। జై హింద్, జై కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఇంకో ఉక్కు మనిషి వల్లభాయ్ పటేల్ గారి కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వారి కూడా పూలమాలలు, వారి ఫోటోకు పూలమాలలు వేసి వారికి కూడా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। ఈరోజు వారు చూపెట్టిన మార్గంలో కూడా ప్రతి ఒక్క దేశ భారతీయ పౌరుడిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నడవవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నదని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియపరచు। पुलिस ने आज सुबह सिकंदराबाद के जोबली बस स्टेशन के पास जिंदा बच्ची को दफन करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। इन दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी। इन दोनों को सुबह 9:30 बजे के करीब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बस स्टेशन के करीब खुली जमीन को खोदते हुए देखा और करीबी पुलिस को इत्तला दी। कांस्टेबल वेंकट रामकृष्णा ने वहां पहुंचा और इन दोनों से खुदाई के बारे में मालूमात की, जिस पर उन दोनों ने बताया कि उनकी बच्ची मर चुकी है। चूंकि बस में मुर्दा बच्ची को साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, वो बच्ची को दफन कर रहे हैं। कांस्टेबल ने जब चेक किया तो बच्ची की सांस चल रही थी। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। हाशिमाबाद बंदलागुड़े में एक पैदल राहरू 55 साल मिर्जा शौकत बेग को सड़क अबूर करने के दौरान एक कार ने टक्कर दे दी, जो कि लाइफ इंश्योरेंस का रिटायर्ड डिविजनल मैनेजर के.वी. कृष्णा चला रहा था। जख्मी शख्स को मकामी अवाम ने दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल किया। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर एल.बी. नगर सरप्रीत सिंह की फॉर्च्यूनर कार ने कृष्णा राव की कार को पीछे से टक्कर दे दी। पुलिस चंद्रंगुट्टा ने के.वी. कृष्णा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये मालूम नहीं हो सका कि फॉर्च्यूनर में डिप्टी कमिश्नर सरप्रीत सिंह सवार थे या नहीं। అడ్డం వస్తే నేను బ్రేక్ వేసినప్పుడు వెనక నుంచి ఒక వ్యాన్, ఒక పోలీస్ వ్యాన్ అని తెలిసింది, ఒక వ్యాన్ గుద్దింది। ఆ జర్క్లో బండి ముందుకు కదిలినప్పుడు బండి మీద నుంచి పడ్డాడు। అంతకుముందు బానెట్ మీద కూర్చొని కంగారులో బానెట్ మీద పడ్డాడు।
బానెట్ మీద నుంచి కింద పడ్డాడు. మీ పేరు సార్? ఆ? మీ పేరు? నా పేరు కేవీ కృష్ణ. ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఏమంటారు సార్ మళ్ళీ? పోలీస్ వాళ్ళు ఎమ్మెల్సీ కేసు అయితే ఫైల్ చేస్తామండి. ఎమ్మెల్సీ కాకపోతే ఏం లేదు, చూశాను కదా. మిమ్మల్ని బలవంతంగా కూర్చొని పెట్టి అంటారు. బలవంతం కాదులేండి, నేను ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇంజూరీ అయినాడు ఏమిటి ఎమ్మెల్సీయా కాదా తెలుసుకునేంత వరకు ఆగారు. ఇప్పుడు ఏమంటారు సార్ పోలీసు వాళ్ళు? కేసు బుక్ చేస్తామంటారు. వాళ్ళు ఎమ్మెల్సీ అయితే కేసు బుక్ చేయాలి కదా అంటున్నారు. बीजेपी के तकरीबन 150 कायदीन ने नलगुंडा पार्लिमानी हल्के में गांधी संकल्प यात्रा निकाली और नौजवानों में महात्मा गांधी के फलसफे को आम करने की जरूरत पर जोर दिया। खादी के कपड़ों में मलबूस और गांधी कैप लगाए हुए बीजेपी के कायदीन की इस यात्रा को साबिक रुकन पार्लियामेंट जी विवेक ने हरी झंडी दिखाई। वाज़ेह है कि बीजेपी मुल्क भर के तमाम पार्लिमानी हल्कों में महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से संकल्प यात्रा निकाल रही है। जिला बीजेपी के सेक्रेटरी एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि गांधी संकल्प यात्रा आइंदा 15 दिनों के दौरान तमाम असम्बली हल्केजात नलगुंडा, सूर्यापेट, देवरकुंडा, मिरियालगोड़ा, कोदाड़ और हुजूरनगर का अहाता करेगी। रियासती बीजेपी के सेक्रेटरी श्रीधर रेड्डी और रियासती किसान मोर्चा के सदर जी मधुसूदन रेड्डी ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के काम ने कल इंडिगो की फ्लाइट के जरिए दुबई से आने वाले एक मुसाफिर शेख फराज अहमद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 25 लाख रुपये मालियती सोना, 1,09,000 रुपये मालियती कीमती आईफोन और 72,000 रुपये मालियती कीमती बुरखे बरामद किए। आगे की कार्रवाई जारी है। रियासती काबीना का इजलास हफ्ता 2 नवंबर को मुनक्किद होगा, जिसमें आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल समेत अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि आरटीसी की हड़ताल आज 27वें दिन में दाखिल हो गई और हड़ताल को खत्म करवाने के लिए हाईकोर्ट में दायर करदा मुकदमे पर जुमा 1 नवंबर को कोई फैसला मुतवक्को है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मुल्क भर में 31 अक्टूबर को 2 अहम शख्सियतों सरदार पटेल और इंदिरा गांधी के हवाले से याद किया गया। बीजेपी ने हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला सरदार पटेल की यौम पैदाइश को यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाते हुए उनको ज़बरदस्त खराज अक़ीदत अदा किया। अहमदाबाद में सरदार पटेल के मुजस्समे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फूल निशावर किए और कहा कि सरदार पटेल मर्द आन थे जिन्होंने सारे राजवाड़ों को हिंदुस्तान में जम करने में अहम किरदार निभाया। कश्मीर से दफ़ा 370 की बर्खास्तगी से मुतालिक बीजेपी का फैसला सरदार पटेल की मलून मिन्नत है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरदार पटेल के जन्मदिन की मुनासिबत से कई प्रोग्रामों में शिरकत की। कांग्रेस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की 35वीं बरसी पर उन्हें ज़बरदस्त श्रद्धांजलि पेश की और उन्हें मुल्क की खातून आहन से ताबीर किया और कहा कि मुल्क की आज जो भी ज़रूरी व सियासी तरक्की है वो इंदिरा गांधी की देन है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेसी कायदीन ने इंदिरा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। जिस दिन को हम सब देश में
एकता दिवस के रूप से मनाते हैं। देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार पटेल की आज जन्म जयंती है और सरदार साहब की जन्म जयंती से और कौन सा दिन उपयुक्त हो सकता है किसी भी पुलिस मुख्यालय के उद्घाटन के लिए। तो इसलिए मैं आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक बड़े अच्छे दिन का चयन किया है। मित्रों, सरदार पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व था जो अपने भाषणों से नहीं अपने कामों से जाना गया। पूरा जीवन सरलता के साथ बिताने वाला व्यक्ति, आजादी के आंदोलन का एक प्रमुख योद्धा, देश का एक बहुत बड़ा किसान नेता, एक अक्षुण्ण देशभक्ति जिसके तन के कण कण के अंदर भरी है, ऐसा व्यक्ति, गांधी का एक मुख्य सेवक। मगर जब सरदार देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने, तब देश और दुनिया के सामने सरदार का एक नया स्वरूप देखने को मिला। देश आजाद हुआ था, विभाजन की विभीषिका से पूरा देश लहूलुहान था, आहत था, अनेक समस्या इस देश के ऊपर थी। उस वक्त सरदार गृह मंत्री बने और रियासतों का मंत्रालय भी सरदार को दिया गया। उस वक्त रियासतों का मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था कि अंग्रेज जाते जाते हमारे विशाल देश को 550 से ज्यादा टुकड़ों में बांट कर गए। आजादी तो दे दी, मगर देश को 550 से ज्यादा टुकड़ों में बांटकर उन्होंने कहा, चलो भाई इकट्ठा करो, देखते हैं कैसे हो सकता है। एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने थी कि काम कैसे होगा। भाषा अलग, बोली अलग, रियासतों की संस्कृति अलग, स्वभाव अलग, सबको अपनी रियासतें न छोड़ने का मोह, लोभ, इस सब के ऊपर एक निश्चित कालखंड के अंदर विजय प्राप्त करना दुनिया भर के सभी मुत्सदी लोगों को असंभव लगता था। मगर जब सरदार साहब को एक काम मिला, उनकी आयु भी कोई कम नहीं थी, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। सबको लगता था इस आयु और इस स्वास्थ्य के साथ सरदार इतने बड़े हिमालयन टास्क को कैसे मिट करेंगे, किस तरह से चुनौती को पार करेंगे। मगर वो सरदार ही थे। मुझे सौभाग्य मिला है सरदार के नजदीक रहे हुए लोगों के साथ घंटों तक बात करने का, चाहे वो एच.एम. पटेल साहब हो, चाहे सरदार की पुत्री मणिबेन हो। सुबह 3 बजे ये व्यक्ति काम। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, चंदी प्रसाद भट्ट जी, मोतीलाल वोरा जी, distinguished guests, friends. This evening we gather here to honor distinguished men and women whose lives have epitomized the values Indira Gandhi cherished, the ideals she stood for, the causes she championed, and the principles for which she became a martyr. National integration was one of Indira Ji's many passions, but unlike those in the ruling establishment now, she did not equate unity with uniformity. On the contrary, she was deeply conscious of and proud of India's many diversities. She was profoundly sensitive to India's many cultural traditions. She was fiercely wedded to strengthening the bonds of political and cultural unity. She believed in accommodating, respecting, and celebrating our many diversities. She also recognized that without just economic and social policies that actively promoted equity and inclusiveness, India could not develop and prosper.
Her vision of national integration was all-encompassing, helping the disadvantaged and ensuring that no section of Indian society was excluded on the basis of caste or creed. The fundamental assumptions that guided our freedom struggle and inspired our country after independence are now being called into question. Today, we see rising intolerance, rising violence, a skewed vision of our history and society is being imposed along with falsehood and unscientific ideas. All this is the antithesis of the liberal, secular, and democratic foundations of our country. If national integration was one of Indira Gandhi's passions, the preservation of India's rich and wonderful biodiversity was a vision far ahead of its time. She strove for economic development, but it was a steadfast conviction that the means must not disturb what she used to often call ecological balance. Economic growth must not mean the destruction of the environment. So it is most appropriate that today we honor Chandi Prasad Bhatt, a true Gandhian, a man whose entire life has been shaped by the Sarvodaya philosophy. For well over a century, he has been a relentless fighter for the protection of our forests, our rivers, our mountains, and of our natural heritage. He has inspired people's movements in different parts of the country, of which the Chipko Andolan is perhaps the most famous. This agitation had a huge impact on Indira Gandhi's own thinking and led to the historic Forest Conservation Act of 1980. There is a fact that perhaps it's less known, and I would like to mention. In the mid-70s, Chandi Prasad Ji was also the savior of the sacred temple of Badrinath. There had been, at that time, a plan to embellish the temple, to modernize it, so to speak, by tampering with it. हिंदुस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाले शहर से भी जाना जाता है, 2050 तक डूब जाने का खतरा है। एक मुतालियाती रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान और दूसरे एशियाई ममालिक बांग्लादेश और इंडोनेशिया में समंदर की सतह में इजाफा हुआ है और उसके अतराफ अकनाफ रहने वालों की आबादी में भी 5 से 10 गुना इजाफा हो रहा है। जब भी शदीद बारिश होती है, जुनूबी बम्बई के कई इलाके डूब जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में शायदशुदा रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि 2011 में मुंबई की आबादी 1,25,00,000 हो गई थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।